Hello students, welcome to my channel Bioki Pathshala. Today we are going to study the next topic, that is the permanent tissues. In the first video I have discussed about the tissues and the meristematic tissues. So the permanent tissues are those which do not have the ability to divide. I have earlier told you in my first video that they are those tissues which do not have the ability to divide. Like meristem, they have the ability to divide, they divide through lifetime, but the permanent tissues, they do not divide. I have also explained with the help of a diagram in the first video that there are meristem in which the meristematic cells divide. These cells, some of these cells which are pushed out of the meristem, and those which are pushed out from the meristem, those cells are known as the permanent cells because they lost the ability to divide. But as I said, they do not divide but still they are present. It means उनका कोई ना कोई तो रोल अकर ही होगा प्लांट के अंदर की, वो तो भी प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ में, बट इन द केस ऑफ परमानेंट टिश्यू they can't divide, they can't help in the plant growth, but they have the specific function. So let us understand with the help of the example. Suppose there are 50 students and they have to prepare for the teachers day, but there is a one student whose name is Ram has assigned for the organizing the program. So Ram is there and he is assigned for the job to look after the cultural programs, and it's his permanent job. That means anytime if there is a function in the school, any function, annual function, farewell, teachers day, whatever is the function, his job is to look after the events which are organized. So it means he has a specific function to perform everywhere, every time. So similarly, this permanent tissue also have the specific function to perform, and they have the permanent shape and size, and they do not have the ability to divide. It is known as the permanent tissue. So the process by which the cell formed by a meristematic tissue become a permanent tissue is called as differentiation. Okay, as I told you in the first video that there is a meristem in which the meristematic cells are there. They have so I told you कि meristematic cells के अंदर divide करने की ability होती है, तो वो meristem के अंदर divide करेंगे और कुछ cells को वो बाहर की तरफ push कर देंगे. तो ये जो process है, this process is known as differentiation. So I hope you all have understood about the permanent tissue. Permanent tissue are those tissue which consist of the cells which lost the ability to divide. Okay, but they carry the specific function. Now we are going to study about the types of the tissue. It is of three types, that is the simple permanent tissue, complex permanent tissues, and the spatial permanent tissues. As we move ahead, we will gradually discuss about it one by one. Firstly, we are going to discuss about the simple permanent tissue. Simple permanent tissue, from the name you can imagine that they are very simple, and they consist of the cells which are similar in size and function. Okay, they are formed by the cells which are similar in function and size, and they are very protective and supportive. It means that simple permanent tissue is further divided into two types, that is the permanent supportive tissue and the protective tissue. These are the function of the simple permanent tissue. Why they are called simple permanent tissue? क्योंकि इसमें बेटा जो cells present होंगे वो similar function के और similar size के होंगे. That's why it is known as a simple permanent tissue. Further, it is classified into the two types, that is the supportive tissue and the protective tissue. Supporting tissue means they give support to the plant. It is of three types, that is parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Firstly, we are going to study about the parenchyma. So parenchyma, it is also known as the packing tissue. It is the basic packing tissue. It means tissue which forms the base of all the plants. It is actually the basic packing tissue. They have unspecialized living cells. They are not specialized to perform the specific function. Its main function is to form the base. They have this now the next topic is the types of the permanent tissues. So
permanent tissues are classified into the three types, that is the simple permanent tissues, complex permanent tissues, and the special permanent tissues. So this we are going to study in the detail. As we move ahead, we will gradually discuss one by one. First we are going to discuss about the simple permanent tissue. So from the name it is indicated that these are the very simple tissue which consists of the cells which are similar in function and the structure. ठीक है बेटा, इट मीन्स कि इसके पास ऐसे सेल्स होंगे जिसमें जो कि एक तरह के होते हैं स्ट्रक्चर में एज वेल एज फंक्शन में, और ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टिव होते हैं एज वेल एज प्रोटेक्टिव. ये दो टाइप्स के आगे जाके फर्दर डिवाइड करेंगे, टू टाइप्स, सपोर्टिव टिश्यू एंड द protective tissue. Supportive tissue, it means it gives the plant support, whereas protective tissue, it protects the plant. Supportive tissue are further classified into three types: parenchyma, collenchyma, and the sclerenchyma. See the, if you have any confusion, you can see the flow chart. ठीक है. So firstly we are going to discuss about the parenchyma. Parenchyma, it means it is a unspecialized living plant tissue formed of thin walled rounded oval and polygonal cells. Okay, so parenchyma are also known as the packing cells. It means the tissue which form the base of the plant. It is actually the basic packing tissue. इसमें क्या होता है कि इसमें अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स होते हैं जो इसमें कि कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने की स्पेशलिटी नहीं होती है. इसका जो मेन फंक्शन है कि ये फॉर्म करता है बेस. ठीक है, इनके पास पतला थिन सेल वॉल होता है और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं. इट मीन्स कि ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इनके पास लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होंगे. सो लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. सी दिस इज द parenchyma cells. There are two diagrams given, A in the transverse section whereas B in the longitudinal section. So in the transverse section you can see these are the tissue, this is the permanent parenchyma cells. If we take a single cell, see if we are taking this single cell, the outer layer is known as the cell wall. Inside it there is cytoplasm. This empty space is known as the vacuole, and this is the nucleus. So there are too many cells which are not closely packed. See, this is the gap between the two cells. This gap, this gap, this gap. कुछ गैप से बीच सेल्स के बीच में, और ये सारे गैप को ही हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं. ठीक है, it means कि इस डायग्राम के थ्रू you can understand that these cells are not closely packed. Now, so the main function of the parenchyma is to provide support to the plants. Okay, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एज वेल एज बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने में भी हेल्प करता है, लाइक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. Now the parenchyma are further classified into the three types, that is the chlorenchyma, palisade chlorenchyma, and the arenchyma. Okay, so these are not too much important, so you have to only study in these topics that what are they and what are their function. तो firstly the chlorenchyma, जब parenchyma cells के अंदर बेटा chloroplast होते हैं तो वो chlorenchyma कहलाता है. ठीक है, now what are chloroplast? I have told you in the first chapter, that is the cell, that the chloroplast consists of the pigment chlorophyll. It is present inside the stomata के अंदर ये present होंगे उसके chloroplast, और chloroplast के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जनरली ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि पूरे प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस भी अकर करेगा. फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस थ्रू विच द प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड. ओके, सो पेरेन्काइमा सेल्स में अगर क्लोरोप्लास्ट अकर करता है, अगर वो क्लोरोप्लास्ट के साथ हैं, तो दोज पेरेन्काइमा सेल्स आर नोन एज द क्लोरेन्काइमा, एंड विद इन द क्लोरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस occur. Now the second is the palisade chlorenchyma. In palisade chlorenchyma, parenchyma cells are elongated and arranged under the upper epidermis of the cells. It means जो parenchyma cells होंगे बेटा वो elongate कर जाएंगे, और जो leaves का upper epidermis होगा, dermis means the outer layer of the plant, जो आउटर लेयर होती है सबसे, जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, दैट इज नोन एज द एपिडर्मिस. तो लीव्स के अपर एपिडर्मिस पे ये जाके अरेंज हो जाएगा, और ये क्या करते हैं, दीज सेल्स ऑल्सो सिंथेसिस फूड, ये भी फूड बनाने का काम करते हैं. नाउ द लास्ट इज द एरेन्काइमा. इन एरेन्काइमा में क्या होता है बेटा कि इसमें जो
पेरेन्काइमा सेल्स होंगे, पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर बहुत लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाएंगे, एयर कैविटीज़ पाई जाएंगी इनसाइड द सेल्स, पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर, ठीक है। ये एयर कैविटीज़ एयर से फिल होती हैं। जब इट मीन्स कि जब पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर बहुत लार्ज कैविटीज़ पाई जाती हैं, दे आर नोन एज द एरेन्काइमा। और जनरली ये किस में पाया जाएगा, ये हमारे एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है, ताकि हमारा जो एक्वेटिक प्लांट है वो फ्लोट कर सके वाटर सरफेस पे। ओके, सो दीज आर द 3 स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ द पेरेन्काइमा विच आर arise from the parenchyma cells, ठीक है। if the parenchyma cells have the chloroplast, they are known as the chlorenchyma. if the parenchyma cells are elongated, they are known as the palisade chlorenchyma. and if the parenchyma cells have the large air cavities, they are known as the erenchyma. okay, now the function of the parenchyma, as I told you, the parenchyma is very supportive tissue and they also store the food such as the nutrient as well as the water. Now the second type is the collenchyma. Okay, collenchyma is generally responsible for the flexibility of the plant. So what do you mean by this flexibility? When I say flexible, it means these are certain parts, कुछ parts होते हैं plants के अंदर जो कि move कर सकते हैं, जो कि bend कर सकते हैं, like the branches और जो leaves होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, ये flexible होते हैं। तो जहाँ पे जो भी parts flexible होता है, जो move कर सकता है plant में, they will consist the collenchyma. They are generally found like in the leaf, branches, stem. Leaf, branches, stem of the plant, they bend without breaking. ये बिना टूटे ही bend कर जाते हैं। तो सो ये सभी चीज़ें किस तरह से happen करती हैं, flexibility की वजह से happen करेंगी। It means collenchyma responsible है plant की flexibility के लिए, ठीक है। Collenchyma provides support and the strengthening tissue. They have elongated living cells which are thickened at the corner. They are also derived from the parenchyma cells. ये parenchyma cells के थ्रू ही डिवाइड करते हैं। parenchyma cells ये क्या होते हैं, elongate कर जाते हैं और thicken रहते हैं at the corner. It is known as the collenchyma. So let us understand with the help of the diagram. So this is the diagram of the collenchyma. See, this is the transverse section and this is the longitudinal section. When you see in the longitudinal section, the cells are elongated. Okay, it means जब cell elongate करेगी बेटा तो उसके अंदर जो vacuole होगा वो भी elongate करेगा। तो so this outer layer is known as the cell wall. Inside this there is a cytoplasm. Cytoplasm के पास क्या होते हैं, vacuole हो जाएगा और बहुत सारी cell organelles होंगी as well as nucleus होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो collenchyma होते हैं वो elongate करते हैं, elongate है। सेकेंड थिंग इज दैट कि ये हमारे कॉर्नर पे थिकन होते हैं। सो यू कैन सी दीज आर द कॉर्नर्स ऑफ द सेल वॉल, दिस एंड दिस। ये सारे जो कॉर्नर्स है बेटा ये हमारे थिकन है। इट मीन्स ये थोड़े से मोटे हैं। ओके, सो इन द पेरेन्काइमा आई हैव टू सी, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारे इंटरसेलुलर they have the intercellular space, in large intercellular space, लेकिन जो collenchyma में आप देखोगे बेटा तो collenchyma में आपको बहुत small intercellular space दिख रहे हैं। देखिए ये छोटे छोटे dots, this dot, these are the intercellular space. It means कि जो collenchyma होगा बेटा, collenchyma में जो cells होंगे वो हमारे closely packed होते हैं। ओके, और इसके अंदर एक big structure आपको दिख रहा है जिसको हम लोग vacuole बोलते हैं, और ये जनरली कहाँ पाए जाएंगे, हमारे लीफ स्टॉक में, ठीक है, स्टेम के एपेक्स में, स्टेम के टिप पार्ट पे। लेकिन मैंने आपको बहुत सारे स्टेम्स ऐसे होते हैं बेटा कि जो मूव नहीं कर सकते, बहुत मोटे हो जाते हैं, लेकिन जो उसका टिप पोर्शन है वो हमेशा मूव कर सकता है। इट मीन्स कि जो भी प्लांट के पार्ट मूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वहाँ पे ये collenchyma सेल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, इट मीन्स इट प्रोवाइड द सपोर्ट in some of the way. It provides the support, it allows the bending of the stems, leaves without breaking, and also provide the mechanical support. Okay, now we are going to study about the sclerenchyma. So the sclerenchyma is responsible for the stiffness in the plants. It means there are certain portion, कुछ portions होते हैं plants के अंदर जो कि बहुत hard और stiff होते हैं, तो वहाँ पे ये sclerenchyma present होता है, ठीक है।
So the cells which are present in the sclerenchyma, they are dead and the thick lignified walls. It means you can see in the diagram, but see these is the sclerenchyma cells. ठीक है, this is the LS section. This it means this is the longitudinal section. This is the transverse section. If you see in the transverse section, these are the cells. There are too many cells. If we take the single cell, का single cell लेते हैं बेटा, तो उसका जो सेल वॉल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इसकी सेल वॉल है जो कि बहुत थिकन है. ठीक है, वो किसकी वो इसमें क्या चीज़ है, एक लिग्निन नाम का सब्सटेंस है. लिग्निन एक सब्सटेंस होता है जो कि सीमेंट की तरह इस सेल वॉल को हार्ड कर देता है, क्योंकि इस ये जो स्क्लेरेंकाइमा है बेटा, वो हमारे ऐसे पार्ट्स में प्रेजेंट होता है जो कि बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए इसका सेल वॉल इतना हार्ड होता है. ठीक है, और इसके अंदर डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. So we all have studied about the three types of the simple parenchyma, that is the parenchyma, collenchyma and the sclerenchyma. So let's have the quick revision. So as I told you that the permanent tissues are further classified into the three types, that is the simple permanent tissues, complex permanent tissues and the special permanent tissues. So in the simple permanent tissues we have studied about the parenchyma, which are known as the packing टिश्यू. ठीक है, क्योंकि ये स्टोर करते हैं फूड. सेकेंडली द कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा क्या करता है बेटा, ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को. एंड द थर्ड इज द स्क्लेरेंकाइमा, जो कि प्लांट के हार्डर पार्ट्स में, प्लांट पार्ट्स को हार्डर बनाने में सपोर्ट करता है. इट मीन्स किसी ना किसी तरह ये प्लांट को सपोर्ट ही कर रहे हैं. ठीक है, तो जो पहला पार्ट मैंने बताया आपको पेरेनकाइमा, ये हमारा स्टोर कर रहा है, तो किसी तरह सपोर्ट कर रहा है प्लांट को. कॉलेनकाइमा भी फ्लेक्सिबल बना रहा है प्लांट पार्ट्स को, तो इट ऑल्सो सपोर्टिंग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. एंड थर्ड इज द स्क्लेरेंकाइमा, इट हार्डर्स द प्लांट पार्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. दैट्स वाई दीज थ्री टिश्यूज आर कंसिस्ट अंडर द सपोर्टिंग टिश्यू. ओके, now we are going to study about the second part of the simple parenchyma, that is the protective tissue. It consists of the two things, that is the epidermis and the cork. So as I first we are going to study about the epidermis. ठीक है, तो epidermis क्या होता है बेटा, epidermis एक आउटर कवरिंग होती है प्लांट के ऊपर, एक आउटर कवरिंग होगी, एक आउटर लेयर होती है, उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं. और वो जो जो सबसे आउटर लेयर होगी वो एपिडर्मिस कहलाती है. ठीक है, वो जो एपिडर्मिस था उसका मेन फंक्शन क्या है कि ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसी भी इंजरी से, किसी भी हार्म से बचाता है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंडर कंसिडर किया गया है. वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एपिडर्मिस. यू हैव टू ओनली नो दैट दीज आर द आउटर लेयर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स एंड दे प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. ओके, द सेकेंड इज द कॉर्क. दे कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल्स. इसमें डेड सेल्स पाई जाती हैं और ये भी हमारा प्लांट के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. इट मीन्स ये प्लांट को किसी भी इंजेक्शन से, किसी भी मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम करता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज द परमानेंट टिश्यू, दैट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सो मैंने आपको बताया कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो बहुत सिंपल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिमिलर सेल से बने होते हैं, जिसका सिमिलर फंक्शन होता है और सिमिलर स्ट्रक्चर होता है. लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ऐसा नहीं होता. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं. ठीक है, जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट अपीयरेंस होता है और डिफरेंट फंक्शन होता है. वो सारे सेल्स एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम वो दो टिश्यूज़ हैं जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंडर आते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं बेटा वो डिफरेंट होते हैं, जिसका अलग अलग फंक्शन होता है. ये सारे एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक फंक्शन को अकर कराते हैं. ठीक है, जाइलम और फ्लोएम टुगेदर आर नोन एज द वेस्कुलर बंडल्स. जाइलम और फ्लोएम आर एक्चुअली द कंडक्टिंग टिश्यू. ये कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जिसके थ्रू भी कोई भी चीज़ हमारे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती है. लाइक फूड, हमारा जो लीव्स में फूड बन रहा है वो उसको कहीं ना कहीं तो ट्रांसपोर्ट होने के लिए जाना है. सारे प्लांट पार्ट को फूड की नीड होती है, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, वो हमारा फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, लीव्स में पहले फूड बनता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, उसके बाद फ्लोएम की हेल्प से पूरे बॉडी प्लांट बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होता है. सो द फ्लोएम इज द टिश्यू थ्रू विच द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द प्लांट. वेयर द जाइलम भी एक कनेक्टिंग टिश्यू है जिसके थ्रू की वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं.
ठीक है बेटा। तो जो रूट होगा वो सॉइल से हमारा वाटर और मिनरल्स ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद उसको अब हमें ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट पार्ट के अंदर, प्लांट के टिप तक, उसको सारे प्लांट के टिप तक वाटर चाहिए, तो जाइलम के थ्रू ही वाटर जो है अपवर्ड मूव करता है। द सेकेंड थिंग इज़ दैट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जाइलम होता है बेटा वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट वो शो करेगा, वो कभी भी डाउनवर्ड मूवमेंट शो नहीं करता। वेयर एज जो फ्लोएम होता है वो डाउनवर्ड एज वेल एज द अपवर्ड मूवमेंट दोनों शो करेगा, क्योंकि जो लीव्स हो रहे हैं बेटा, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म के थ्रू फूड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो फूड है वो हमारे रूट को भी चाहिए एज वेल एज जो टिप रीजन है प्लांट का उसको भी चाहिए। तो इट मीन्स कि वो अपवर्ड भी मूव करेगा एज वेल एज द डाउनवर्ड भी मूव करेगा, ठीक है। तो जाइलम क्या होता है, सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होता है और फ्लोएम हमारा बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जाइलम। So xylem are the dead and thick cells which help in the transport of the water, which helps in the conduction of the water, ठीक है। उसके बाद इसमें 4 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, ट्रैकिट्स, वेसल्स, xylem parenchyma and the xylem fiber. So let's have the look on the diagram. So this is the xylem element, that is the fiber, tracheids, vessel and xylem parenchyma. Firstly, we are going to talk about one by one in detail. We have to only study about their function. Okay, तो जो बेटा ट्रैकिड्स आप देख रहे हो उसमें ये हमारा ट्रैकिड्स है। ट्रैकिड्स कैसे होते हैं, ट्रैकिड्स टेपरिंग एंड होते हैं इसके दोनों तरफ, ओके। और इसके बीच में एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर, एक हॉलो स्पेस होता है, एयर कैविटी होती है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसमें, कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स में। सिमिलरली जो वेसल्स होते हैं बेटा ये भी हमारा ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये भी हमारा हेल्प करते हैं वाटर के कंडक्शन में, मिनरल्स एंड वाटर के कंडक्शन में। इट मीन्स जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होंगे ये दो एलिमेंट है हमारे किसके, जाइलम के, जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स में हेल्प करते हैं। लेकिन जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है, दिस इज द जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को मैंने आपको बताया जो पेरेन्काइमा होता है वो पैकिंग टिश्यू होता है, वो स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो जाइलम पेरेन्काइमा होगा बेटा वो स्टोरेज का फंक्शन ही परफॉर्म करेगा, यहाँ पे भी फूड स्टोर होता है आके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द फाइबर, जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम। इट मीन्स जो ट्रैकिड्स और इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और फाइबर। ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होते हैं वो कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स में हेल्प करेंगे, ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। जो जाइलम पेरेन्काइमा होगा ये स्टोरेज इन फूड में हेल्प करता है, वेयर जो फाइबर्स होते हैं बेटा जाइलम फाइबर्स वो हमारा सपोर्ट करते हैं, प्लांट पार्ट्स में सपोर्ट करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि जाइलम के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि उनको कोई मेन फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है, उनको सिर्फ कंडक्शन करना है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, दैट्स वाई दे कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल्स। वेयर एज द फ्लोएम के क्या होता है, फ्लोएम में भी लिविंग सेल्स होते हैं, ये इनको भी सिर्फ कंडक्शन करना है, लेकिन इनको दोनों तरफ मूव कराना है, अपवर्ड भी मूव करना है एज वेल एज डाउनवर्ड भी मूव करना है, दैट्स वाई दे आर कंसिस्टिंग ऑफ द लिविंग टिश्यूज, लिविंग सेल्स, ओके। इसको हम लोग बास्ट भी बोलते हैं। इन द सेम जैसे जाइलम में 4 एलिमेंट्स से मिलके जाइलम बनता है, इन द सेम वे फ्लोएम भी हमारा 4 एलिमेंट से मिलके बनेगा, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज दैट द फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या है कि वो हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। सो लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। सो दिस इज द exact structure of the elements which are present in the phloem. So they are the 4 elements, that is the sieve tubes, companion cells, phloem fiber and the phloem parenchyma. So firstly we are not going to discuss in detail, we only have to discuss about their functions. So sieve tubes are the tubular cells with the small pores through which the food is transported. Next is the companion cells, they are the living parenchymatous cells, ओके। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं बेटा, ये हमारे पेरेन्काइमा सेल से बने होते हैं जो कि लिविंग होता है और ये हमारा कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल में हेल्प करता है। इट मीन्स जो सीव ट्यूब्स होगा, दिस सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स ये एक साथ मिलके हमारा कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, ओके। उसके बाद जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है, जैसे मैंने बताया कि पेरेन्काइमा हमारा पैकिंग टिश्यू होता है, वो स्टोर करता है फूड। जाइलम पेरेन्काइमा भी फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है। उसी तरह जो फ्लोएम पेरेन्काइमा भी होगा वो भी हमारा फूड के स्टोरेज में हेल्प करेगा। एंड द लास्ट इज द
फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं बेटा? फ्लोएम फाइबर ये भी हमारा प्रोटेक्टिव होते हैं फंक्शन में, सॉरी सपोर्टिव होते हैं फंक्शन में। ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं लाइक द जाइलम फाइबर की तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me in the comment box. If you like my video, please do like and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for the more videos. Thank you.